Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana lakal hamd bima khalaqtana wa razaqtana wa anqadtana wa farajta anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Quran. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ قریش آیت نمبر 1، لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، قریش کو رغبت دلانے کے لیے۔ لِإِيلاف کو ہم بہت اچھی طرح سے پچھلی کلاسز کے اندر سمجھ چکے ہیں کہ قریش کے دل کو نرمی، محبت، الفت کے ساتھ اصل میں کانشیس کیا جا رہا ہے، ان کو نعمتوں کے بارے میں الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو بہت انعام دیے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس آیت میں قریش کا جو لفظ ہے، کیونکہ ہم لی ایلاف کو سٹڈی کر چکے ہیں، لی کو بھی سمجھا اور ایلاف کو بھی کافی تفصیل سے سمجھا، آج ہم آیت کا اگلا لفظ قریش کو سٹڈی کریں گے کہ قریش قبیلے کو قریش کیوں کہا جاتا تھا، یعنی ناموں کے مفہوم سے کس طرح سے، یا قریش کے نام سے ہم کس طرح سے اس لفظ کی کونوٹیشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو آج جو میں نے ٹاپک دیا ہے آیت 1 کے حوالے سے، وہ ہے ڈی کوڈنگ دا نیم آف قریش، یعنی قریش کے نام کے اندر کتنے مفہوم چھپے ہوئے ہیں، ہم اس کو بھی ڈی کوڈ کریں گے عربی زبان کے لحاظ سے۔ Simultaneously, one of the very important thing which we can discuss today، جس کو میں پہلے ڈسکس کروں گی، جو میں نے اپنے ٹاپک کی ایک آپ کو ساتھ میں سب ٹائٹل کے طور پر دیا ہے، what philosophy we should have for our names، ہمیں اپنے ناموں کے بارے میں کیا مائنڈ سیٹ، کیا ہمیں اپروچ رکھنی چاہیے جب ہم قریش کی اصطلاح کو ایز اے نام سمجھ رہے ہیں، اس کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں، تو کچھ بالکل بیسک کانسیپٹس جو انشاءاللہ ہمیں کئی اینگل سے کلیئرٹی دے دیں گے۔ جیسے ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ نام ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے، تو انشاءاللہ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا حکمت ہے کہ نام اچھے کیوں رکھنے چاہیے، اور ناموں کے بارے میں، ناموں کی فلسفی ہمیں کیا رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو نام ہوتا ہے آپ کا، جس کو ہم نیم کہتے ہیں، دس از ایکچولی یور انٹروڈکشن، یا آپ کا بالکل پہلا تعارف ہوتا ہے۔ سامنے والا جب آپ سے پہلی مرتبہ کوئی ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو آپ سے سنتا ہے وہ آپ کا نام ہوتا ہے، کوئی آپ کا تعارف کراتا ہے، یہ سائمہ ہے، یہ شازیہ ہیں، یہ تبسم ہیں، یہ جو ہیں یہ مثال کے طور پر سائرہ ہیں، تو سب سے پہلا آپ کا تعارف آپ کا نام ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کی اصل میں پہلی انفارمیشن ہوتا ہے سامنے والے کے لیے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم واقعی اپنے ناموں کو اہمیت دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں، ہم انسان اب تو الحمدللہ ہم جتنا زیادہ آس پاس کے لوگوں کے حالات سے اویئر ہوتے ہیں، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب ہم انسانوں کے نام سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیز آر بیبی نیمز۔ جب نام تلاش کرتے ہیں تو ہم بیبی نیمز ان کو کہتے ہیں، یعنی ہم ناموں کے ساتھ ایک اصطلاح دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کی ورلڈ پر، کتابوں میں جس میں بچوں کے نام ہوتے ہیں تو ان کو بچوں کا نام کہا جاتا ہے، دیٹس وائی آئی ایم ریفرنگ بیبی نیمز۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ انسان کا نام تو ہمیشہ اس کی شناخت رہتا ہے، وہ بیبی رہے یا نہ رہے، وہ ایڈلٹ ہو جائے، وہ بزرگ ہو جائے، وہ بوڑھا ہو جائے، وہ جو بیبی نیم ہوتا ہے وہ چلتا تو بڑھاپے تک ہے نا۔ ہمارا نام چاہے بچپن میں دیا گیا، ایز اے نیو بورن دیا گیا، لیکن وہ تو ہماری شناخت ہمیشہ رہتا ہے، وہ ہمارا تعارف ہمیشہ رہتا ہے۔ ہاں، کوئی کہتا ہے بیبی ٹیتھ تو سمجھ آتی ہے کہ ظاہری بات ہے، بچے کے دانت جو ہوتے ہیں وہ بچپن میں گر جاتے ہیں،
हुँ? फिर जब एडल्ट होता है इंसान, बड़ा होना शुरू होता है, तो उसके परमानेंट दाँत आ जाते हैं। सो आई कैन कंप्लीटली रिलेट दिस बेबी टीथ होते हैं। आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू बेबी शूज़, आई कैन कंप्लीटली रिलेट टू बेबी क्लोथिंग बिकॉज़ समझ आता है कि छोटे बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं, बड़ों के बड़े हो जाते हैं। मगर बेबी नेम्स मतलब आप अगर इस चीज़ को इस तरह से ज़रा थोड़ा-सा पॉन्डर करें तो आपको खुद भी हँसी आएगी कि हाँ, बेबी टीथ की तरह बेबी नेम्स एक्ट नहीं करते हैं बिकॉज वो तो हमारे हमेशा का तारुफ बन जाता है हमारा जो नाम होता है बुढ़ापे में भी हमारे साथ रहता है मगर मुझे नहीं पता कि हम उनको बेबी नेम्स क्यों कहते हैं तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है सोचें और रिसर्च करें कि इनको बेबी नेम क्यों कहा जाता है जबकि वो हमारी एंटायर लाइफ में हमारा लेबल होते हैं अ लेबल फॉर अस वट एवर वी आर एंड वेयर एवर वी आर जिस एज पर भी पहुंच जाएंगे वो हमारा लेबल रहेगा देखिए, जैसे ही किसी इंसान का नाम आपके सामने आता है, ज़ाहिर है जिसको आप जानते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैसे ही किसी इंसान का नाम आपके सामने लिया जाता है, तो आपके इमोशंस उस इंसान के बारे में आपके चेहरे पर मुख्तलिफ शेड्स की तरह नज़र आते हैं। And this is fascinating actually, because we made opinions based on anyone's name. इस तरह से नहीं कि उसके नाम जिसके नाम की मीनिंग्स बहुत अच्छे होंगे तो उसका सोचकर हमें बहुत चेहरे पर एक बहुत ही कलरफुल इमोशंस आते हैं इसलिए नहीं कि किसी के नाम के मीनिंग ज्यादा अच्छे हैं और किसी के कम तो उसके अकॉर्डिंगली इमोशंस और कलर्स आते हैं नहीं बल्कि इसलिए कि उस शख्स का नाम उसकी पर्सनैलिटी और उसका तारुफ होता है उसका किरदार आपके जहन में उसके नाम से फौरन आ जाता है तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि नामों के से रिलेटेड रखकर की जाती है कि इस डिस्कशन में सबसे अहम बात ये होती है कि जो समझनी है आपका नाम आपकी लाइफ टाइम आइडेंटिटी है ये विंटर और समर सूटिंग की तरह ऐसा नहीं होता कि आपने बदल ली कि समझ नहीं आया तो बदल ली पसंद नहीं आया तो बदल लिया दिल भर जाए तो किसी को दे दिया नहीं आपका नाम आपके साथ चलता है टिल द लास्ट ब्रेथ आखिरी सांस तक तो अगर नाम के मीनिंग समझ आ जाएं और आपके नाम के अच्छे मीनिंग्स हों तो इंसान इंसान जो होता है हु कैन एक्ट लाइक एक्चुअल ह्यूमन वो उस नाम के मुताबिक जीने की कोशिश करता है इसीलिए कहते हैं कि आपका नाम आपका तारुफ होता है और जिंदगी में एक ही मिलता है बहुत सारे नाम नहीं मिलते आपको मतलब मेजर आपका नाम जो होगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी होगा आपको एक ही मिलता है और मजीद मजे की बात यह है कि वो जो नाम हमें मिलता है हम खुद नहीं रखते अपना नाम अच्छा लेट मी सिलेक्ट मी माई नेम सो आई एम अ बेबी नाउ एंड आई एम सिलेक्टिंग माई नेम नहीं ऐसा नहीं होता नाम तो माँ बाप सेलेक्ट करते हैं वो उसको चूज कर लेते हैं माँ बाप जो नाम दे देते हैं वही हमारी पहचान बन जाता है बहुत से लोगों को आपने सुना होगा वो कहते हैं कि मुझे अपना नाम पसंद नहीं है मगर याद रखें ये आपका तारुफ है जो आपको आपके माँ बाप की तरफ से दिया गया है बिल्कुल जैसे आप अपने फिजिकल बीइंग को अपनी फिजिकल बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं हेल्दी डाइट लेते हैं हेल्दी लाइफ पैटर्न अडॉप्ट करते हैं ऐसे ही हमारा काम होना चाहिए कि हम अपने नाम की अच्छी ट्रेट्स को सामने रखें अच्छे मीनिंग्स को सामने रखें और फिर उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें बिकॉज आपका नाम फिर आपकी उन ट्रेट्स की वजह से जिंदगी में पीछे रह जाता है आपकी शनाख्त बनता है चाहे आप चले भी जाएं लोग आपको याद रखते हैं आपकी शख्सियत की वजह से आपके अच्छे किरदार की वजह से तो नामों के मुताबिक जीने की कोशिश करनी चाहिए और नाम को कभी नापसंदीदा नहीं कहना चाहिए तो ये नामों को जो वैल्यू करने का ट्रेडिशन है ना ये तो हमें मुसलमानों को तो खैर अपनी तारीख से मिला है आप देखें अरब जो थे वो अपनी चीजों के नाम रखा करते थे और अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को स्टडी करें तो पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे और आप क्यों ऐसा करते थे बिकॉज ये जो अरब ट्रेडिशन था इसमें किसी को नाम मुख्तलिफ देना ये या तो मोहब्बत की वजह से होता था या यू आर गोइंग टू ऑनर समथिंग या किसी इंसान को या किसी चीज को भी अगर कोई नाम दिया करते थे अरब तो ये नेमिंग द थिंग्स एक्चुअली वाज ड्यू टू ऑनरिंग समथिंग
जब किसी चीज़ को ऑनर किया करते थे ना तो उसको नाम दिया करते थे। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो म्यूल था, उसका नाम दुलदुल था, दुलदुल था उसका नाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया हुआ था कि आप उसको दुलदुल कहा करते थे, जिस पर आप फ्रीक्वेंटली सवार हुआ करते थे। आपकी तलवार थी, आपने उसको नाम दिया हुआ था। आपकी जो टर्बन थी, उसका नाम आपको सीरत-ए-रसूल में मिल जाता है। सो जो चीज़ें इंसान को फ़ायदा पहुँचाती हैं, जो चीज़ें इंसान के इस्तेमाल की होती हैं, दिस वाज़ आवर ट्रेडिशन कि उसमें मुसलमान नाम दिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, तो जब कभी आप ये सोचती हैं ना कि अच्छा वो तो अरब ट्रेडिशन था, तो इतना लिमिटेड नहीं सोचा करें। हाँ, इट वाज़ एन अरब ट्रेडिशन बट रसूलुल्लाह अरब थे। आपका ताल्लुक उस ट्रेडिशन से था। आपकी सुन्नत हो जाती है जो चीज़ आपने उस ट्रेडिशन में एडॉप्ट की, तो आप चीज़ों के नाम रखा करते थे। बिल्कुल जैसे हम प्यार से अपने बच्चों के नाम, उनके निकनेम्स रख लेते हैं। आप अपने स्पाउस को बहुत प्यार से बुलाती हैं, आपके स्पाउस आपको बहुत प्यार से बुलाते हैं। एक बहुत कॉमन सी बात है जो आजकल हम हमारी उम्र की ख़वातीन अक्सर परेशान भी रहती हैं और सवाल भी उठता है। तो वो कहती हैं कि ये हम अपने हमारी अम्मी अपने हस्बैंड को सुनिए क्यों कहती थीं? या हमारे अब्बा हमारी अपनी बेगम को, हमारी अम्मी को बेगम क्यों कहा करते थे? मतलब नाम क्यों नहीं लेते थे? तो अगर आप उसको स्टडी करेंगे ना तो आपको बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन ये सब कॉन्टिनेंट के कल्चर की मिलेगी। और आपको ये कल्चर सब कॉन्टिनेंट का जिसमें शौहर को बहुत मोहब्बत से सुनिए कहा जाता था और शौहर अपनी बीवी को बहुत मोहब्बत से बेगम कहा करते थे। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल लिंक एक्चुअली विद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम पढ़ते नहीं है ना, इसलिए हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। हम समझते नहीं है इसलिए हमें डॉट से डॉट्स मिलाने नहीं आते हैं। हम अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को पीछे जाकर अपनी हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते ना, इसलिए हमें लगता है कि नहीं-नहीं दिस इज़ नॉट आवर गेम, ये हमारा कल्चर नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की। लेकिन अगर आप डॉट्स मिलाएँ कल्चर्स के हिस्ट्री के साथ, तो कल्चर जो आपको ये सब कॉन्टिनेंट का है, ये आपको अर्ली जनरेशंस तक ले जाएगा कि जिसमें मैंने आपसे कहा कि अरब का कल्चर था कि वो जब किसी को ऑनर किया करते थे, तो उसको नाम दिया करते थे। मोहब्बत करते थे तो नाम देते ही थे, किसी को ऑनर करने के लिए भी नाम दिया करते थे। तो ये जो आप सब कॉन्टिनेंट में कल्चर देखती थी ना कि सुनिए कहा जा रहा है शौहर को और बेगम कहा जा रहा है बीवी को और इनके नाम नहीं लिए जा रहे। तो ये कोई हर दफ़ा नेगेटिव हर चीज़ में कॉनोटेशन नहीं होती है। ये मोहब्बत का इज़हार भी था एक-दूसरे के लिए और एक-दूसरे को ऑनर करना भी था। पता नहीं हम इतने खूबसूरत टर्म्स को और हम इतने खूबसूरत कल्चर को कभी-कभी बेफ़िज़ूल ताने दे देकर मॉडर्निज़्म के नाम के ऊपर जो है, वो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट कर देते हैं। तो अगर आपकी अम्मी अपने आपके अब्बू को सुनिए कहती हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन। आप उनको बता सकती हैं कि एक्चुअली यू आर फॉलोइंग वन ऑफ द कल्चर ऑफ अरब्स जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आपको जो है सुन्नत मिलती है कि आप किसी को ऑनर करते हुए भी उसको नाम दिया करते थे। जैसे हज़रत अली को एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी में लेटे हुए देखा था। ज़ाहिर है उस वक़्त तो कोई इस तरह से कारपेट्स और रग्स और इस तरह से जो हैं वो दरियाँ और चादरें नहीं होती थी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल। तो मिट्टी में लेटे हुए थे तो उनके जिस्म पर मिट्टी लग गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अबा तुराब कह के, फादर ऑफ द सॉइल कह के जो है वो इस तरह से एड्रेस किया था। मोहब्बत से ऑनर करते हुए ये नाम दिए जाते हैं। तो ये जैसे बिल्कुल हम बच्चों को निकनेम्स देते हैं, जैसे शौहर-बीवी एक-दूसरे के लिए मोहब्बत में और ऑनर में एक-दूसरे को टाइटल्स देते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों को टाइटल्स दे देती हैं, बडी कहती हैं, फ्रेंड कहती हैं, बीएफएफ कहती हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आप कॉन्स्टेंटली एक्नॉलेज करती हैं अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी नेमतों को। बिल्कुल ऐसे ही अरब में रहते हुए, अरब होते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप अपने इस्तेमाल की चीज़ों को भी नाम दिया करते थे। आप इमेजिन करें ना, आज आपका एक स्टडी टेबल है, हो सकता है इस वक़्त भी आप अपने स्टडी टेबल पर बैठी हों और आप उस स्टडी टेबल को एक नाम दे दें। एक तो स्टडी टेबल टर्म है, लेकिन आप उसको कोई नाम दे दें। आप उससे कह दें लेट्स से कीटू कुछ भी कह दें। व्हाटएवर यू विल से इन लव वो प्यार मोहब्बत से एक उसको नाम देना हो जाएगा।
मगर हम क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं कि हम अपने एक मेरा कॉफ़ी पीने का फ़ेवरेट मग होता है घर में, हम उसको नाम नहीं देते थे। जहाँ हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बैठकर पढ़ते हैं स्टडी टेबल पर, हम उसको नाम नहीं देते। शायद इसलिए कभी-कभी मुझे फीलिंग्स आती हैं कि शायद इसलिए इन चीज़ों को हम कभी नेमत समझते भी नहीं हैं, इसलिए कि एप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। कितनी मर्तबा इस बात पर हमारे दिल से सोचें, शुक्र निकला, अल्हम्दुलिल्लाह निकला कि हमारे पास बैठकर कुर्सी पर, मेज़ पर पढ़ने के लिए एक स्टडी टेबल और कुर्सी है। कितनी मर्तबा इस बात पर हमने इसको एप्रिशिएट किया। पैंडेमिक ने तो इसको बहुत ही एप्रिशिएट करने की पोज़ीशन पर रखा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा हमें इन चीज़ों की वैल्यू पता चली। तो ये वैल्यू देने के लिए एक कल्चर था नाम देने का। तो अरब इस्तेमाल की चीज़ों को नाम दिया करते थे, अरब मोहब्बत में नाम दिया करते थे, अरब ऑनर में नाम दिया करते थे। एंड व्हेन आई एम सेइंग ऑल दीज़ थिंग्स रिलेटेबल विद द अरब, तो याद रखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे, आपका ताल्लुक अरब से था। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि हम क्योंकि उस कल्चर को पढ़ते नहीं हैं, उनसे ताल्लुक हम फ़ील नहीं करते हैं, तो हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को भी इसलिए जो है वो शायद नाशुक्री की वजह से एप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, नाम देना तो बड़ी दूर की बात है। छोटी-छोटी चीज़ों को ना एप्रिशिएट करना सीखें, यही सिखाता है कुरान। क्यों कहते हैं कि कुरान कदम-कदम पर हमारी रहनुमाई करता है। सिर्फ नामों के बारे में छोटी-सी चीज़ जान रहे हैं और हमें नेमतों को एप्रिशिएट करने का सबक जो है वो मिल रहा है। और सहाबा हों या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात डायरेक्ट कर रहे हों या आपके बाद के मुसलमानों की बात कर रहे हों, ये अपनी छोटी-छोटी सोचिए आपने अपने पेन को नाम दिया हो, सोचिए आपका लैपटॉप है लेकिन आपने उसको एक नाम दिया हुआ है, क्यूटी, आप अपने लैपटॉप को कहती हैं क्यूटी। आप मतलब ये हम सोचते नहीं हैं, क्यों नहीं सोचते? ये हमारे अंदर से ट्रेंड खत्म क्यों हो गया? शायद हम छोटी-छोटी नेमत को एप्रिशिएट करना भूल गए हैं। जो याद रखें, छोटी नेमतों को एप्रिशिएट कौन करता है? क्यों करते थे रसूल अल्लाह हर नेमत को के ऊपर एप्रिसिएशन और शुक्र? सहाबा का मिजाज क्यों था? ताबेइन, तबा ताबेइन, अर्ली मुसलमानों का ये ट्रेडिशन क्यों था? आप पढ़े तो पता चलेगा, उलमा कहते हैं बिकॉज़ साफ दिल के लोग होते थे। साफ दिल के लोगों के अंदर मोहब्बत होता है, खुलूस होता है, ऑनर करना आता है उनको, लोगों को भी और नेमतों को भी। और पहले के दौर के मुसलमान ऐसे ही होते थे। जैसे आप किताबों में एक किस्सा देखते हैं, एक शख्स जिनका नाम जोहा आता है, उनके बारे में मुख्तलिफ किस्से आते हैं। तो एक मर्तबा एक इंसिडेंट आता है कि एक मर्तबा उनके नेबर ने उनके घर से ना किसी कि जोहा के ही चीखने की आवाज़ सुनी। ज़ाहिर है एक-दूसरे की आवाज़ तो इंसान पहचानता है। तो उन्होंने रात में इन मिड ऑफ द नाइट जोहा के चीखने की आवाज़ सुनी। तो नेबर तो बड़ा परेशान भी हुए, सोचा अगर दोबारा आवाज़ आएगी तो जाकर नॉक करूँगा, मगर दोबारा आवाज़ नहीं आई, फिर खामोशी हो गई। तो जब सुबह में नेबर की जोहा से मुलाकात हुई, तो पूछा कि मुझे रात में आपके घर से आपके चीखने की आवाज़ आई थी, क्या हुआ था? तो जोहा उनको बताने लगे कि मेरा जो ड्रेस था, जो मेरा ख़ौब था, कपड़ा, मेरे ड्रेस लिबास मेरा, वो मेरी क्लॉज़ेट से गिर गया था। तो जब वो गिरा तो मैं उसकी वज़ह से एकदम से शाउट किया। तो पड़ोसी ने पूछा इसमें चीखने की क्या बात थी? आपका कपड़ा ही गिरा था ना, आप क्यों चीखे? तो इतने स्वीट लोग होते थे, आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि नरम दिल वाले लोग कैसे होते हैं, शुक्रगुज़ार लोग कैसे होते हैं। तो जोहा ने कहा कि मैंने सोचा जब मेरा ड्रेस गिर गया कि क्या होता अगर मैं इसके अंदर होता? मतलब दिस इज़ सो रिलेटेबल कि इंसान को छोटी-छोटी नेमतों के ऊपर शुक्र जो है वो करना अपने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिशन से आता है। एंड वी रियली डोंट थिंक इन दिस मैनर। हमने छोड़ दिया इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों पर सोचना। तो जिन चीज़ों से हमारा ताल्लुक है, इस टॉपिक से रिलेट करते हुए इंशाल्लाह हमने उनको ऑनर करना, उनको एप्रिशिएट करना, उन पर शुक्र करना इंशाल्लाह हमने सीखना है। इसी तरह से इंसान को अच्छे मीनिंगफुल नाम अपने बच्चों को देने चाहिए, इसलिए कि क़यामत के दिन भी ना सिर्फ़ ये नाम दुनिया में हमारी पहचान है, बल्कि हम क़यामत के दिन भी इन्हीं नामों से पुकारे जाएँगे, इन्हीं नामों से हम उठाए जाएँगे एंड इट्स अ सुन्नह टू हैव अ गुड नेम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे नाम जो है, जिनके मीनिंग्स अच्छे हों, वो नाम रखने की तरफ एनकरेज किया है। एक चीज़ यहाँ आपको और इंशाल्लाह क्योंकि हम अ, अपने दीन को समझना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इन डेप्थ सेशंस के थ्रू हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलता जाए। जहाँ तक बात है कि
جب ایک ریورٹ ہوتا ہے انسان، یعنی ایک مسلم بنتا ہے انسان، نان مسلم سے مسلم بنتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا ٹیچنگز ملتی ہیں نام کے سے ریلیشن میں دیکھتے ہوئے کہ کیا اس کو نام ضرور بدلنا ہوتا ہے اگر کوئی انسان کسی بھی دوسرے مذہب سے اسلام میں آتا ہے؟ تو جب آپ یہ چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس انسان کا نام نہیں بدلا جس نے اسلام قبول کیا اور آپ نے اس سے کہا کہ اب آج سے تمہارا نام پچھلا والا نہیں یہ ہے، بلکہ اگر آپ سیرت رسول اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس صورت میں لوگوں کے ناموں کو چینج کیا جب ان کے ناموں کی کونوٹیشن توحید کے خلاف تھی، ورنہ آپ نے نام نہیں چینج کیا. جیسے اگر کسی کا نام عبداللات تھا یا کسی کا نام عبدالعزا تھا تو یہ ان کے فالس گاڈز تھے، یعنی کہ لات کا بندہ، لات کا غلام، عزا کا غلام، یہ ان کی وہ تھے فالس گاڈز، آئیڈلز. ان صورتحال میں کیونکہ یہ نام ٹکرا رہے تھے کس کے ساتھ؟ یہ توحید کے کانسیپٹ کے ساتھ ٹکرا رہے تھے. ان صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلے ہیں. جیسے آپ کو حضرت طلحہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، طلحہ ایک درخت سے میننگ رکھتا ہوا نام کی کونوٹیشن آتی ہے. طلحہ نام ان کا اسلام لانے سے پہلے سے تھا جو صحابی رسول ہیں. اللہ کے رسول نے ان کا نام نہیں بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ طلحہ کے نام کے اندر آلدو درخت کی کونوٹیشن تھی لیکن کوئی بری کونوٹیشن نہیں تھی. تو درخت سے عرب بہت محبت کیا کرتے تھے کیونکہ صحرا تھا تو کم درخت ہوتے تھے. تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام صرف تب بدلے ہیں نان مسلمز کے مسلمان ہونے پر جب ان کے ناموں کی کونوٹیشن توحید سے ٹکراتی تھی. اسی طرح سے آپ نے سیرت رسول میں پڑھا ہوگا کہ حضرت حسن کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو نام سجیسٹ کیا تھا ان کی پیدائش پر وہ حرب تھا، حاربہ. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سجیسٹ کیا کہ ان کا نام حسن رکھا جائے. تو یاد رکھیں نام آپ نے سجیسٹ کیے بدلوائے لیکن ہر ایک کا نہیں بدلا. یہ بات بس ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اچھا ایک اور چیز ناموں سے ریلیٹڈ یہ بھی سمجھ لیں کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے مسلمان بچوں کے ناموں کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں اکثر جو ہیں ڈیل کرنی پڑتی ہیں. ایک بات سمجھ لیں کہ عربک نیمز یعنی وہ نام جن کی عربک اوریجن ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کے صرف وہ نام رکھیں. ہاں ان کے جو بھی نام رکھیں ان کے میننگز اچھے ہونے چاہیے، ان کا مفہوم اچھا ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو اچھے نام دیں اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں وہی نام جو آپ اپنے بچوں کو دیں گی وہ ان کی پہچان بنے گا. دیکھیں آج ہم مسلمان جب یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا نام کن گراؤنڈز پر رکھیں تو دیکھیں دو وجوہات ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ دو وجوہات ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلم اوریجن کے نام دیں. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ نان مسلم کلچر کے اندر کسی کا نام مسٹر براؤن ہوگا، مسٹر ووڈ ہوگا، مسٹر کارڈ ہوگا، وہ لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں جیسے ووڈ مطلب لکڑی، براؤن مطلب براؤن کلر. تو ہم مسلمانوں میں نام رکھنے میں اوریجن میں مسلمانوں والا نام رکھنا اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے دونوں وجوہات رکھ رہی ہوں جو کہ ارلی ٹائم سے لے کر اب تک آپ کو ملتی ہے. صحیح؟ وہ کیا ہے؟ پہلی وجہ جو اسکالرز بتاتے ہیں نمبر 1 وہ کہتے ہیں مسلمان زیادہ تر مسلمانوں والی کونوٹیشن پر نام اس لیے رکھتے ہیں تاکہ عرف جس کو ہم کہتے ہیں نا عرف عربی زبان میں کہتے ہیں یو کین سے دا کلچر دا نارم، وہ نام جو کہ مسلمانوں میں مشہور ہیں. تو ہمیشہ سے اسلام آنے کے بعد سے آپ کو ایک فلو ملتا ہے ان نیمنگ دا چلڈرن جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ عرف کے اوپر نام رکھے ہیں اپنی اولادوں کے. کیوں؟ تاکہ ان کی اولاد دوسرے مذاہب کے لوگوں سے پہچانی جائے. ورنہ itself نام مسلم کافر نہیں ہوتا، اس کو سمجھیں. نام اپنی ذات میں مسلم یا کافر نہیں ہوتا. جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ جملہ میں بول دیتی ہوں اکثر بہنوں کو کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا بچہ کیک نہیں کھا سکتا ہے. کیک اپنی ذات میں مسلم یا کرسچن نہیں ہے، وہ تو ایک کھانے کی چیز ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس اوکیزن کے اوپر اس کو کس
कैटेगरी के अंदर फिट इन कर दिया है। इसी तरह से नाम मुस्लिम या काफिर नहीं होता, इसकी फिलॉसफी को समझें कि मैं अब कहूं कि एक नॉन मुस्लिम मुसलमान हुआ, उसका नाम डैनियल था या उसका नाम जेम्स था, तो अब मैं कहूं कि ये मुसलमान हो गया तो उसका नाम हम डैनियल जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जस्ट गो बैक एट द ओरिजिन ऑफ द डैनियल, यू विल कम इन उर्दू कॉनोटेशन दानियाल। तो मतलब चीजों को जल्दी जल्दी इतना तो जजमेंटल होकर जो है ना हम ना देखा करें। नाम मुस्लिम या काफिर नहीं होता। हाँ, हम अपने बच्चों को मुसलमानों वाले नाम क्यों देते हैं? हमारा मेन कंसर्न जो हम अपने ट्रेडिशन में देखते हैं वो ये है कि नाम रखा जाता है, किस कल्चर में कौन से नाम रखे जाते हैं, इसको उर्फ कहते हैं। किस मजहब के लोग किस पैटर्न पर नाम रखते हैं, इसको उर्फ कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मुसलमानों ने हमेशा वो नाम अपने बच्चों को दिए जो हमारे एक कल्चरल ट्रेडिशन में चले आ रहे हैं। पहले भी ऐसा होता था और अब जरा कम हो गया है, पहले ज्यादा था बिकॉज अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो पहले लोग कम थे, पॉकेट्स में थे, पॉपुलेशन कम थी, इतना ज्यादा जो था वो इंटरनेट एक्सपोजर नहीं था, दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं बनी थी, तो पहले लोग नामों से आइडेंटिफाई हो जाते थे कि किस जगह से हैं, उनका ताल्लुक किस कॉन्टिनेंट से होगा। और ये कॉमन था कि हर उर्फ का जो मामला था वो वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहता था। जैसे हमारे मुसलमानों वाले नाम नॉन मुस्लिम्स नहीं रखते, नॉन मुस्लिम्स के नाम जो थे वो मुसलमान नहीं रखते थे। अब मुसलमानों के अंदर डिफरेंट कॉनोटेशन हो सकते हैं, जैसे एक इब्राहिम नाम है, अरबी नाम है, लेकिन आप में से कितनी बहनें जानती हैं कि इब्राहिम एक नोन प्रोनाउंसिएशन है जो हम जानते हैं, इट्स अ करेक्ट रेसिटेशन। एक और करेक्ट रेसिटेशन है, साउंड क़िराअह जिसको बोला जाता है इब्राहिम की, वो है इब्राहाम। इब्राहाम का लफ्ज भी आपको ये कहे ओहो आपने तो नाम ही गलत रख दिया, नहीं, इट्स कंप्लीटली अ साउंड क़िराअह, साउंड प्रोनाउंसिएशन जो कि अरबी जुबान में एक्सेप्टेड है, इब्राहाम। अगर आपने किसी के बच्चे का नाम सुना कि उसने अपने कहा कि मेरे बच्चे का नाम, आप मलेशिया से किसी फैमिली को देखती हैं, मुस्लिम फैमिली है, वो बताते हैं हमारे बेटे का नाम इब्राहाम है, आप कहती हैं फतवा लगा के ओहो गलत नाम रख दिया, इब्राहिम होता है। ये नहीं करना चाहिए इंसान को, बिल्कुल गलत। इब्राहिम भी ठीक है, इब्राहाम भी ठीक है, बाज लोग उसको अब्राहम बोलते हैं तब भी ठीक है। अगर मेरे और आपके इल्म में नहीं है तब भी वैलिड है। मतलब ये नहीं होता कि हर चीज जो कुछ दीन में आती है सब मेरे इल्म में है। अपने अंदर इस इन डेप्थ स्टडी से ह्यूमिलिटी लेकर आए, और जिसके अंदर ह्यूमिलिटी होती है ना वो फौरन फतवे नहीं लगा देता है, बल्कि हम मैं और आप तो फतवा लगाने की पोजीशन में है ही नहीं, हमारी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं आती है। कोई आपको कोई ऐसी बात बताए तो फट से नहीं कह दिया करें नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, बल्कि कहें अच्छा ऐसा भी है, हो सकता है मेरे इल्म में नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। मैं आपसे कहूं कि क्या दुनिया में आपने हर जगह देख ली? आप कहेंगी नहीं। आपने कितने भी वर्ल्ड टूर किए हों, कोई इंसान दुनिया में नहीं कह सकता कि मैंने दुनिया का कोना कोना देख लिया है। नहीं, आपने दुनिया का कोना कोना नहीं देखा। अभी भी अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसी जगह होंगी जहां हम कभी गई भी नहीं हैं। तो इसी तरह दीन की बहुत सी बातें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो पहली रीजन मुसलमान बच्चों को मुसलमानों वाले नाम दिए जाते हैं, रीजन नंबर 1, उर्फ के हिसाब से, ताकि वो मुस्लिम पहचाना जाए। बिकॉज नाम हमारी आइडेंटिटी होते हैं, नाम हमारा कल्चर प्रेजेंट करते हैं, नाम हमारा काफी हद तक ओरिजिन बता देते हैं, नाम हमारी काफी हद तक हिस्ट्री बता देते हैं। जैसे ये जो आपके सर नेम्स होते हैं जिसमें आप अपना कास्ट जो है वो भी प्रोमिनेंट करती हैं, तो लोग अपनी कास्ट को क्यों लगाते हैं? बिकॉज इट्स योर कंप्लीट इंट्रोडक्शन। एक्चुअली आपके नाम के आगे लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर आपकी कास्ट में मिसाल के तौर पर मेमन, शेख, अराए, बट, खान, ये सब वो क्या है, फौरन पता चल जाता है कि अच्छा आपका पूरा इंट्रो ये है, आपकी बेसिक फैमिली हिस्ट्री जो है वो सामने आ जाती है। तो नाम आपको उर्फ के हिसाब से रखने होते हैं अपनी औलादों के, ताकि नाम से एक वर्ल्ड व्यू, आपका आपका व्यू जो है वो दुनिया के सामने आ जाए। दूसरी रीजन जो स्कॉलर्स बताते हैं कि हम मुसलमानों वाले नाम क्यों रखते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्कशन, इट्स अ ब्यूटीफुल
ایکسپلینیشن جو اسکالرز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نام جب مسلمانوں والے ہوتے ہیں جن کی اچھی کانوٹیشنز ہوتی ہیں تو آپ کے نام کا اثر آپ کی پرسنالٹی پر آ سکتا ہے. Now, please focus on my sentence. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے نام کا اثر آپ کی پرسنالٹی پر آتا ہے. اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کے نام کا امپیکٹ اگر وہ اچھے میننگ والا ہے تو وہ آپ کی پرسنالٹی پر امپیکٹ کر سکتا ہے. کب؟ جب آپ کوشش کریں، جب آپ کو اپنے ناموں کی میننگز معلوم ہو اور جو اچھے میننگز ہو آپ ان کو اپنا کر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں تو آپ کا نام آپ کی پرسنالٹی پر امپیکٹ کرتا ہے. یہ جو ہمارے کلچر کے اندر چیز آ گئی نا کہ فلاں کے اوپر بہت مشکل ہے، فلاں بچہ بہت بیمار رہتا ہے تو اس کا نام بدل دو. دس از کمپلیٹلی رانگ. کیوں؟ اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو اسکالرز اگر آپ نے نام اس پوائنٹ آف ویو سے بدلا کہ اس کی بیماری چلی جائے گی، نام اس پوائنٹ آف ویو سے بدلا کہ اس کی مشکل دور ہو جائے گی، نام اس پوائنٹ آف ویو سے بدلا کہ کاروبار فلرش کرنے لگ جائے گا اور پھر کاروبار فلرش کرنے بھی لگ گیا، بیماری دور بھی ہو گئی، مشکل چلی بھی گئی، نوکری مل بھی گئی، پرابلم کیا ہوگا؟ پھر توکل اس بات پر ہو جائے گا کہ دیکھا نام بدلا تھا نا مشکل چلی گئی، نام بدلا تھا نا بیماری چلی گئی. سو اب توکل رب کی بجائے نام پر شفٹ ہو جائے گا. تو یہ سائیکالوجی اسلام ہمیں اڈاپٹ کرنے کی طرف بالکل انکریج نہیں کرتا. یہ کانسیپٹ سب کانٹیننٹ میں یا جہاں مسلمانوں کے کلچرز کے اندر آیا کہ ناموں کے اثرات ہمارے ان فیکٹرز پر ہوتے ہیں جن کا تعلق تقدیر سے ہے. دیکھیں بیماری، مشکلات، آپ کا رزق، آپ کا کاروبار اور نوکری، آپ کی صحت، دیز آر دا میٹر آف تقدیر. اور تقدیر کے معاملات پر نام امپیکٹ نہیں کرتا. یہ ہمارے مسلمانوں کے بعض کلچرز کے اندر آئے اور سب کانٹیننٹ میں بھی یہ کلچر آیا کہ خام خواہ میں لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کمپلیکیٹ کیا علم کی کمی کی وجہ سے، کہ سوچا کہ غربت اور پریشانیاں اور بیماریاں جو ہیں وہ ناموں کی وجہ سے آتی ہیں. دس از کمپلیٹلی رانگ فلاسفی ٹو انڈرسٹینڈ کسی کا نام بھاری ہے. ختم کر دیں اس مائنڈ سیٹ کو، بیکاز آپ کا اور میرا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. پریشانیوں کو ناموں کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کریں، نام کو بلیم نہیں کریں. ایک بچہ ہے اس کا نام محمد ہے، احمد ہے، آپ کہتے ہیں بیمار رہتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، نام بدلیں گے اس کا اتنا پیارا؟ فاطمہ نام ہے بچی کا، بیمار رہتی ہے، آپ اس کا نام بدل دیں گی؟ نیور. یو کانٹ ڈو دس. بالکل مت کیجیے گا ایسا، بیکار بات ہے. اگر یہ کوئی کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ نام بدلیں گے تو وہ فیکٹرز ٹھیک ہو جائیں گے جن فیکٹرز کا تعلق انسان کی تقدیر سے ہے، تو انسان بڑی خاموشی سے شرک الخفی میں انوالو ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. And we don't want to include ourselves into the list of the people those are actually involved into shirk. یہ اومنز لینے کی طرف بات چلی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں الطیرۃ شرک. اومنز لینا انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. بیڈ اومنز لینا شرک ہے، ہم نہیں کر سکتے یہ چیز. تو ڈونٹ ایسوسیٹ دیس تھنگ. اسلام نے ختم کیا اس چیز کو. جب جب جہالت پریویل ہوگی اومنز لینا بڑھتا جائے گا. اگر آج مسلمانوں میں یہ کلچر آ گیا ہے، یہ سائیکالوجی آ گئی ہے کہ نام بھاری ہوتے ہیں تو نام بدل دینے چاہیے، یا جو ہیں وہ اومنز لیتے ہیں اور اس طرح سے کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اور درمیان میں سے اللہ تعالیٰ کی جو ایک کبریائی ہے اس کو بھول جاتے ہیں ہم. اس کا مطلب ہے علم کی کمی ہے، اور علم کی کمی جب بھی ہوگی اللہ کا کلام موجود ہوگا اس علم کی کمی کو دور کرنے کے لیے. ایون صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، تو ان کا کال آتا ہے جس کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آنے سے پہلے، یعنی عرب جو تھے، ظاہر ہے علم نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، حالات بگڑ چکے تھے، توحید ڈسٹارٹیڈ تھی، شرک عام تھا. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم بھی بیڈ اومنز لیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے اپنے رسول کے ذریعے ان اومنز لینے سے بچا لیا اور ہمارا توکل اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اگر ہمارے معاشرے کے اندر اومنز لینا آ گیا ہے، سپرسٹیشس مائنڈ سیٹ ہو گئے ہیں، تو ہم مات آ گئے ہیں،
सिंपल तरीका है, कुरान की बात को फॉलो करना शुरू कर दें। सिर्फ झूमने के लिए कुरान नहीं सुने, आपको कुरान पढ़ के जो है वो एक फीलिंग्स आती हैं, लाइक समथिंग इज ट्रिगरिंग इन योर हार्ट, और आप आहिस्ता आहिस्ता हिलती हैं, मुझे कोई इसमें इश्यू नहीं है। यू कैन मूव, अगर आपको लगता है कि एक फीलिंग्स अंदर से आपके कल्ब को हिलाती है, बट सिर्फ ये हिलना हिलना नहीं रहना चाहिए, झूमना इस हद तक नहीं रहना चाहिए। ये आपके और मेरे थॉट पैटर्न पर इम्पैक्ट करना चाहिए। रिलायंस अल्लाह पर ले जाएं, तवक्कुल अल्लाह पर ले जाएं, ईमान रखें जो मामलात तकदीर के हैं वो मेरे रब के हाथ में हैं और तकदीर लिखी जा चुकी है। हम बीमारी, मुश्किल और परेशानी नामों से कनेक्टेड नहीं है। तो आप आज आपका अल्लाह ताला आपको बेटा देते हैं, आप उसका नाम इब्राहिम रखें या सलीम रखें, या आप उसका नाम ज़ायान रखें, या आप उसका नाम अली रखें, या आप उसका नाम राहील रखें, कोई भी नाम रखें, मीनिंग अच्छे होने चाहिए, ठीक है? इट्स ओके टू टेक एनी नेम। इसी तरह बेटियों का मामला है, जो नाम हो अच्छी कॉनोटेशन पर रखें। नाम तकदीर पर नहीं, शख्सियत पर, किरदार पर असर कर सकते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज द सेकंड रीजन जो स्कॉलर्स कहते हैं कि मुसलमानों वाले नाम अपने बच्चों को क्यों देते हैं। बिकॉज हम ये जानते हैं कि अच्छी कॉनोटेशन के नाम हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, जब अच्छे नामों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाती है। जैसे कभी कभी इंसान के अंदर जो है कुछ चीजें आ जाती हैं उसके नाम की सख्ती की वजह से। दिस इज फ्रॉम द नेगेटिव परस्पेक्टिव। जैसे एक वाकया आता है जो कि एक ताबई की किताब में आपको मिलता है, और वो कहते हैं सईद बिन इब्ने मुसैब जो थे, वो कहते हैं कि उनके वालिद का जो नाम था, नाम जो था हज़न था, हाज़ानून, हज़न। हज़न का मतलब होता है रफ एंड टफ, डिफिकल्ट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनके वालिद का नाम पूछा तो इन्होंने कहा हज़न। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख के कहा नहीं हज़न तो नहीं, आप तो साहल हैं। लेकिन उनके नाम के अंदर हज़न का लफ्ज रहा था। तो सईद इब्ने मुसैब लिखते हैं, वो कहते हैं कि उनकी फैमिली में ये हज़न जो नाम था, उनको महसूस होता था कि इस हज़न नाम की वजह से उनके डिसेंडेंट्स में एक हल्की सी परसेंटेज ऑफ रफनेस हमेशा रही। वल्लाहु आलम, दिस इज हिज ओपिनियन, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम जो चीज समझते हैं वो ये, नंबर वन, कि जो हमने रीजन जानी है कि नाम जो हैं वो उर्फ के मुताबिक मुसलमान रखते हैं, इसलिए मुसलमानों वाले रखते हैं। और नंबर टू, मुसलमानों वाले नाम इसलिए रखते हैं कि हमारा एक ट्रेडिशन है, और वो ये कि हमारे अच्छे मीनिंग्स के जो नाम रखे जाते हैं उनका हमारे बच्चों के किरदार, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा असर जो है वो आता है। एक और पॉइंट इससे पहले कि मैं कुरैश पर जाऊं, आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये पॉइंट्स इंशाल्लाह आपको फ्रॉम डिकोडिंग द फिलॉसफी ऑफ नेम्स जो हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसको ठीक कर देगा इंशाल्लाह। मुसलमानों के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है इल्म आने के बाद से, जो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अवाम का काम नहीं होता बहस करना दीन के मामलात पर, ये स्कॉलर्स का, उलमा का, शयूख का, मुफ्ती हजरात का काम होता है। और वो बहस क्या है कि वो बहनें जिनकी शादी को 10 साल हो चुके, 20 साल हो चुके, जिन बहनों की शादी अब हुए काफी टाइम हो गया, जिसकी वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो हैं वो उनके नामों के साथ हैं। आई एम डिस्कसिंग द इशू ऑफ चेंजिंग योर नेम, फादर्स नेम, और अपने सर नेम पर शौहर का नाम लगाना। गौर से सुने प्लीज, कोई मेरी बात को डिस्टॉर्ट नहीं करे, ठीक है? अल्लाह मुझे सीधा सादी बात और हक वाली बात करने की तौफीक दे। एक बात, जहां हम नामों के हवाले से बात कर रहे हैं वहां बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझें, वो बच्चियां जिनके निकाह अभी नहीं हुए, वो माएं जिनकी बेटियों के अभी निकाह नहीं हुए। सीधी सी बात है, इस्लाम के अंदर बाप का नाम हटाकर शौहर का नाम लगाने का ट्रेडिशन नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर अभी आपका डॉक्यूमेंटेड निकाह नहीं हुआ है, अगर आपकी बच्चियां अभी छोटी हैं, कीप अ फर्म बिलीफ, इस्लामिक ट्रेडिशन हमारा मौजूद है, तालीमात मौजूद हैं। हम अपनी बेटियों का सरनेम चेंज नहीं करेंगे,
उनका सरनेम जो है वो वालिद वाला ही रहेगा इवन आफ्टर देयर निकाह। हस्बैंड नेम की जगह हस्बैंड नेम आ जाएगा, सिर्फ जहां पर पासपोर्ट और सीएनआईसी में या आपकी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के अंदर जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, आपके नेशनल कार्ड्स के ऊपर जहां फादर नेम था, बस निकाह के बाद वहां हस्बैंड नेम आ जाएगा। अदरवाइज जो आपका नाम है वो फादर नेम के साथ रहेगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आपको क्लिक करेगी सब कॉन्टिनेंट की, वो आपको ये क्लिक करेगी कि आपने देखा होगा हमसे पहले की जो जनरेशन थी वहां औरतों के नाम 2 नाम होते थे। इट्स लाइक आबदा कुलसुम, नसरीन कुलसुम, शगुफ्ता नसरीन। वो दोनों नाम इसलिए भी होते थे कि सरनेम का चक्कर ही नहीं रखते थे, इस तरह से चलता था। लेकिन इस्लामिक फिलॉसफी समझ जाएं, नाम सरनेम चेंज नहीं किया जाता, वालिद का सरनेम चलता है। सही, ये तो क्लियर हो गया। अब वो बहनें जैसे जो जिनकी शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 30 साल हो गए, अब पता चला कि ओहो मुझे वालिद का नाम नहीं था, शौहर का नाम नहीं लगाना था। अब आपका पासपोर्ट है, आपका डोमिसाइल है, आपका बैंक अकाउंट है, आपके नेशनल आईडी कार्ड्स हैं, आपके आपके जो हैं वो मिसाल के तौर पर कोई एसेट्स के पेपर हैं, आपके शेयर्स हैं, सब जगह पर आपका जो है सरनेम हस्बैंड वाला है। अब आपको आज पता चलता है ओहो इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम। अब क्या करें? अब क्या करें? झगड़ा करें शौहर से? एक उसके ऊपर और करने के 50,000 काम है, हम उसके ऊपर ये भी जिम्मेदारी डाल दें कि अब आपने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करने हैं और मैं बैक टू अपने अब्बा का नाम उस पर जाना चाह रही हूँ। देखें, अगर तो हो सकता है, डू बिस्मिल्लाह। अगर ये एक वक्त गुजर गया मेरे नाम के साथ, मुझे भी नहीं मालूम था, जाहिर है जब मेरा निकाह हुआ तो मुझे तो नहीं मालूम था, सच्ची बात है, बिकॉज उस वक्त तो ऐसी रिलीजन की इल्म नहीं था। तो मेरे नाम के साथ भी अब्बा का नाम था पहले, अब उसके बाद जब निकाह हो गया, जाहिर बात है आईडी कार्ड जो है वो दोबारा बने, पासपोर्ट दोबारा बना, सारे पेपर डोमिसाइल वगैरह सब जो है उनको करेक्ट किया गया। तो अब क्या हुआ कि अब मेरे नाम के साथ भी मेरे शौहर का नाम है। मुझे कुछ साल पहले पता चला कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि अब मैं झगड़ा करने बैठ जाऊं, तसादुम नहीं कहता इस्लाम, तसादुम की बात नहीं होनी चाहिए। इस्लाम का उसूल सर्टन मामलात पर जहां ब्रैकेट बनता है, जिंदगी तसादुम का नहीं, जिंदगी तवाजुन का नाम है। सही। तो अगर आपके बच्चे अभी अनमैरिड हैं बेटियां, तो आप अपना अभी से एक नोशन रखें कि आप उनके सरनेम नहीं बदलेंगी। अगर आपके नाम को बदले हुए टाइम हो चुका है और अब डॉक्यूमेंट्स को हिलाना मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने इस नियत से नहीं सरनेम बदला कि खुदा ना खास्ता आपका लिनियज बदल जाए। आपके डोमिसाइल से लेकर आपके जो आपके जितने भी फैमिली फॉर्म्स नादरा के भी होंगे, इफ यू आर इन पाकिस्तान, सब में फादर्स नेम में आपके अम्मी अब्बा का नाम लिखा हुआ है। इस्लाम कहता है ताकि लीनियज डिस्टर्ब ना हो, तो ये आज नाम चेंज करना लीनियज डिस्टर्ब करना नहीं होता। हाँ, मैंने आपको इसकी फिलॉसफी फॉर अपकमिंग यूथ बता दी है, वो बच्चियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई। अदरवाइज शादीशुदा खवातीन जरा जज्बात को थामे। इस्लाम जिंदगी में बहुत से मौक़ों पर तसादुम से दूर होकर तवाजुन की बात करता है, उसको अडॉप्ट कीजिए। फाइनल चीज इस टॉपिक से रिलेटेड, जहां हम एक दूसरे को निक नेम्स दें, मोहब्बत में दें, ठीक है। प्लीज हमारे कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा लाइल्मी की वजह से और वही बात की क्रॉस कल्चर्स की वजह से नाम बिगाड़ना सख्त सख्त गलत बात है, बद इखलाकी है और बहुत ज्यादा एक बड़ी माशरती सोशल बुराई है। नाम बिगाड़ना समझ लें इज अ माशरती बुराई, इसमें आपने इन्वॉल्व नहीं होना। हमारे यहाँ कॉमन है, पता नहीं क्यों, कि हम एक दूसरे की कास्ट के ऊपर, बरादरी के ऊपर एक दूसरे को बुरे बुरे टाइटल्स देते हैं, एक दूसरे के नाम बिगाड़ देते हैं, बुरे बुरे। अगर आप ऐसे लोगों में हैं जो इंसल्टिंग अंदाज में किसी का नाम बिगाड़ते हैं या किसी खानदान का नाम बिगाड़ते हैं या किसी कास्ट का नाम बिगाड़ते हैं, नाम बिगाड़ कर रिडिक्यूल करते हैं, प्लीज आज के बाद आप कभी उनका साथ नहीं देंगी। आप कभी उनके गलत इस अमल के अंदर अपना हेड काउंट नहीं देंगी, बल्कि मोहब्बत से बता दें ये नामुनासिब बात है, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। सो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो नामों की अहमियत पर और जो फिलॉसफी थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रही थी। आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको आज के इस पोर्शन ऑफ द टॉक से
काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और आपके बहुत से जो सवालात थे शायद उनके जवाबात भी आपको मिल गए हों। नाउ आई एम मूविंग ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ माय टॉक, जिसमें हम इंशाल्लाह अब सूरत कुरैश में कुरैश के नाम के ऊपर उसको डिकोड करने की जो है वो अरबिक लैंग्वेज के थ्रू कोशिश करेंगे। सूरत कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ली-इलाफी कुरैश, अल्लाह ताला ने कुरैश के लिए उनको रग़बत दिलाने के लिए, उनको मानूस करने के लिए, लोगों को उनके साथ मानूस करने के लिए यहाँ पर एक आयत को बहुत खूबसूरती के साथ उल्फत के लफ्ज़ से अटैच करके बताया है। कुरैश को कुरैश किस मीनिंग में कहा जाता है और कुरान में उनके नाम के ऊपर क्योंकि सूरत भी आई है, सूरत कुरैश जो हम कर रहे हैं, तो फिर इस को डिकोड करके अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की ही खूबसूरती हमारे सामने आती है। स्कॉलर्स की, क्लासिकल स्कॉलर्स की 3 ओपिनियंस हैं, 3 एक्सप्लेनेशंस हैं, जिसमें वो कुरैश के नाम की कॉनोटेशन बताते हैं। नंबर 1 एक्सप्लेनेशन, number one explanation from Arabic perspective is actually ismu Quraishin li jam'in, ismu Quraishin li jam'in, यानी कुरैश का जो नाम है उसके अंदर जमा करने का मफहूम है। कुरैश का लफ्ज इस पहली एक्सप्लेनेशन में जो जिस मीनिंग के साथ है वो कहते हैं इसका रूट वर्ड कुरैश का ऑफ रॉ शीन है, अर्श, जिसको हम हरूफ असलिया कहते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग रेगुलर मेरे साथ इन डेप्थ स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं मुख्तलिफ सूरतों की, आपको अब हरूफ असलिया और रूट वर्ड्स का पता चल गया होगा। अरबी जुबान में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स से कोई लफ्ज बनता है, तो कुरैश बना है कॉफ रॉ शीन से। पहली एक्सप्लेनेशन स्कॉलर्स की है कि कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं। वो कहते हैं तकर्रुश, रॉ की पेश और रॉ पर तशदीद, तकर्रुश से कुरैश बना है और तकर्रुश बाब तफाउल से आता है। मतलब होता है तकर्रुश का बहुत मेहनत से मुख्तलिफ फासलों से चीजों को जमा करना, बहुत मेहनत से मुख्तलिफ डिस्टेंस से चीजों को गैदर करना। आप अगर वो मेरे लेक्चर की पूरी एक्सप्लेनेशन याद कर लें जो हमने कुरैश की हिस्ट्री पर की थी कि कुरैश अरब का मशहूर इज्जत वाला कबीला क्यों बना था, मेनली क्योंकि ये कुरैश मुतवल्ली बन गए थे काबा के, बैतुल्लाह के, तो इनको बनु कुरैश को मक्का में प्रोमिनेंट पोजीशन मिल गई थी। कुरैश से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था। कुरैश की ही ब्रांच बनु हाशिम है जिसमें रसूलुल्लाह आए। तो एक राय के मुताबिक जो कुसई बिन किलाब थे, याद है आपको, ये नाम याद होगा, कुसई बिन किलाब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर हैं। कहते हैं एक राय के मुताबिक, हिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना मुस्लिम हिस्ट्री, तो उसमें एक राय ये आती है कि जमा करने वाले जो थे, ये कौन था जमा करने वाला मुख्तलिफ इलाकों से। एक राय ये है कि कुसई बिन किलाब का टाइटल था कुरैश, इसलिए कि इन्होंने बनु इस्माइल को, अरब ट्राइब्स को मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा करके मक्का में एक जगह पर जो कि डिस्पर्स थे कलेक्ट कर लिया था, तो इसलिए इनको कुरैश कहा जाता है। कुरैश तकर्रुश से है, मुख्तलिफ स्कैटर्ड पीसेस को एक जगह कलेक्ट करने से। तो क्योंकि तारीख अत-तबरी के मुताबिक वो लिखते हैं इमाम तबरी कि कुसई बिन किलाब ने सारे अपने बनु इस्माइल को इकट्ठा किया था, तो इनका टाइटल था कुरैश, ही वाज द फर्स्ट वन जिनका टाइटल कुरैश था। एक और आपको राय मिलती है तारीख में जिसमें इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के एंसेस्टर ट्री के अंदर आपको बताया था नदर बिन कनाना का नाम आता है। बाज स्कॉलर्स के मुताबिक उनका टाइटल कुरैश था क्योंकि उन्होंने बनु इस्माइल को जमा किया था अपनी कैपेसिटी में। तकर्रुश से कुरैश जमा करने वाला, उन्होंने कहा कि नदर बिन कनाना को कहा जाता है। तो दो राय आपको मिलती हैं। एक राय ये कि कुसई बिन किलाब का लकब कुरैश था क्योंकि उन्होंने डिस्पर्स्ड बनु इस्माइल को जमा किया था, और एक राय मिलती है नदर बिन कनाना के लिए कि उनका टाइटल कुरैश था, उन्होंने बनु इस्माइल को गैदर किया था। तो अगर इस कॉनोटेशन में देखें तो पहली एक्सप्लेनेशन कुरैश को कुरैश क्यों कहा जाता है, इस्मु कुरैशिन लिजमअन, कुरैश को कुरैश कहते हैं क्योंकि वो स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे, तकर्रुश से बना है,
ان کو قصی بن کلاب یا نضر بن کنانہ نے اکٹھا کر دیا. ٹھیک ہے. سیکنڈ ایکسپلینیشن جو کہ قریش کے ٹائٹل کی اسکالرز بتاتے ہیں، یہ ایکسپلینیشن ہے اسم قریشن للتعظیم والتصغیر. تعظیم آپ اردو میں بھی کہتے ہیں، کسی کی عظمت، اور تصغیر کسی چیز کو چھوٹا کر کے بتانا. تو جو دوسری ایکسپلینیشن ہے، اگر آپ میں سے کوئی عربی میں لکھتا ہے تو اسم قریشن للتعظیم والتصغیر کیا ہے؟ دوسری ایکسپلینیشن اسکالرز کہتے ہیں قریش کا لفظ قرشن سے ہے. قرشن، قاف را زبر قر، شین دو پیش شن، قرشن. پہلی ایکسپلینیشن تھی کہ قریش کا لفظ تقرش سے ہے. صحیح ہے. دوسری ایکسپلینیشن ہے کہ قریش کا لفظ قرشن سے ہے. قرشن سے وہ کہتے ہیں اس کا اسم تصغیر بنا ہے. تصغیر، تا صاد غین یا را، وہ کہتے ہیں کرش سے اسم تصغیر بنا ہے قریش. اب آپ کہیں گے اسم تصغیر کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے ان کو پتا ہوگا اسم تصغیر کیا ہوتا ہے، جن کو نہیں آتی ان کو میں بتا دیتی ہوں بہت ایزی وے میں. دیکھیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسم تصغیر کس کو کہتے ہیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قریش اسم تصغیر کیوں ہے. آپ اردو میں کچھ ناموں کو انہی ناموں سے نا نک نیم بنا دیتی ہیں. جیسے ایک آپ کے بیٹے کا نام ہے صلاح الدین، تو آپ صلاح الدین کو صلاح الدین نہیں کہتی بلکہ آپ کہتی ہیں سلو سلو، آپ سلو کہہ کے بلاتی ہیں اس کو. آپ کی بیٹی کا نام ہے بینش، آپ اس کو کہتی ہیں بینا بینا. تو یہ جو صلاح الدین سے سلو بنایا اور جو بینش سے بینا بنایا آپ نے، تو بینا ہو یا سلو ہو یہ دونوں اسم تصغیر ہو جائیں گے. ایک اور بہت خوبصورت اگزامپل آپ کو انشاءاللہ اسم تصغیر ہمیشہ یاد رہے گا. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی سے جڑ جاتی ہے، مسلمانوں کا ایک خاص افیلیشن ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں کو سننے کے بعد یاد رہتی ہے. یہ خوبصورتی ہے اس امت کی، اور یہ انعام ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی فیملی کو ہمارے لیے اتنا اہم رکھا گیا ہے. تو کیا اگزامپل ہے کہ عربی میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام حسن، ایک نواسے کا نام حسن آتا ہے، حسن رضی اللہ عنہ. حسن کوئی چیز جو کہ بہت خوبصورت ہے. اب آپ نے کہنا ہے چھوٹا حسن، یعنی ایک چیز خوبصورت ہے لیکن وہ چھوٹا ہے. تو حسن سے اسم تصغیر آتا ہے، صرف حسن کے اندر یا ایڈ کر دیتے ہیں. چھوٹی یا کہتے ہیں، چھوٹی یا اردو میں کہتے ہیں چھوٹی یا، بڑی یا. جو چھوٹی یا ہوتی ہے نا، عربی میں حسن میں چھوٹی یا ایڈ کر دیں، کیا بن جائے گا؟ حسین. حسن خوبصورت، چھوٹا خوبصورت کون ہے؟ حسین. تو حسین is actually اسم تصغیر. See the beauty of Arabic language. جب آپ in depth study کرتے ہیں، آپ کو کیوں قرآن سے محبت ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو کیوں اسلام سے محبت ہونے لگ جاتی ہے؟ بیکاز یہ ڈیکوڈ کرتا ہے الفاظ کو. in depth study constantly قرآن کے الفاظ کو ڈیکوڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی ہمارے سامنے بار بار لے کر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جیسے ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں عبد، سلیو. عبداللہ آتا ہے نا، عبد. عبد کہتے ہیں غلام کو. چھوٹا عبد اسم تصغیر کیا ہوگا؟ آپ نام اردو میں دیکھتی ہیں ہم لکھتے ہیں بچوں کے، عبید. عبید کیا ہے؟ عبید اصل میں عبد سے بنا ہے. سو عبد عبادت کرنے والا. ایک چھوٹا اسم تصغیر عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ عبید. ہم اردو میں کہتے ہیں نا بھائی، بھائی سے بھیا، پیار میں کہتے ہیں. بعض لوگ اپنے بڑے بھائی کو بھیا پیار میں کہتے ہیں. تو عربی زبان میں اسم تصغیر کسی چیز کی اس کا چھوٹا ورژن اور تعظیم کے ساتھ چھوٹا ورژن بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب خدا نخواستہ کسی کو حقارت کے ساتھ چھوٹا کرنا نہیں آتا. اس لیے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، اسم قریشن للتعظیم والتصغیر. تصغیر کے اندر کسی چیز کی اپنی جگہ پر پوزیشن، مقام، سٹیشن، اس کا اہمیت اپنی جگہ رہتی ہے. جیسے اگر عربی میں کہتے ہیں نا کتاب صغیر، چھوٹی کتاب، تو ایک انداز ہے عربی میں کہنے کا کتاب صغیر.
ایک انداز ہوتا ہے عربی میں صرف لکھا ہوا ملے گا کتیبن، کاف تا یا با. دس از اسم تصغیر، کتیبن چھوٹی کتاب. طفلن بچے کو کہتے ہیں، طوفالام. اگر آپ اس کو اسی نام کو آپ دیکھتے ہیں طفیل آتا ہے، اردو میں بھی ہم طفیل نام دیکھتے ہیں. چھوٹا بچہ، اسم تصغیر بٹ ود تعظیم. تو اسم تصغیر کہتے ہیں کسی شے کے مقابلے میں چھوٹی چیز کو بتانا، لیکن چھوٹا کرنے میں اس کی پوزیشن، اس کی تعظیم مینٹین رکھنا. اسم تصغیر محبت کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان میں. اب آئیں اس ایکسپلینیشن پر جو اسکالرز قریش کی بتاتے ہیں کہ قریش اسم تصغیر کرش کا کیسے بنتا ہے. لفظ کیا تھا؟ قرشن. اس کا یا کے ایڈیشن کے ساتھ جب لفظ بنا اسم تصغیر تو بن گیا قریش. قرش کس کو کہتے ہیں؟ قرش کہتے ہیں عربی زبان میں ہیوج جائنٹ بیسٹ آف دا اوشن. قرش کوئی ہیوج جائنٹ بیسٹ ہوگا نا سمندر کا، اس کو کہتے ہیں قرش. یہ آپ نے آج بھی کانسیپٹ بہت ایون چائنیز اور جاپانیز کلچر میں تو آپ کو بہت ملتا ہے جائنٹ ہیوج اسکویڈ کانسیپٹ. سائنس بھی اس کے اوپر اسٹڈی کرتی ہے اور بتا چکے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے میٹرز 40 یا 45 میٹر بڑا اسکویڈ انہوں نے جو ہے وہ ڈیپتھ آف دا اوشنز کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے. تو یہ جائنٹ ہیوج اسکویڈ کانسیپٹ جو ہے اس کو قرش کہتے ہیں اصل میں عربی زبان میں. یہ ہمیشہ سے دنیا میں کانسیپٹ جو ہے اوشن بیسٹ کا رہا ہے. تو قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ ہوا دابتن عظیمن فی البحر تأکل جمیع الدواب البحر ولا توکل. یعنی قریش یا قرش ایسی چیز کو کہتے ہیں جو سمندر کا ایک بڑا اینیمل ہے جو سب کو کھا جاتا ہے جسے کوئی نہیں کھا سکتا، جو سمندر کی گہرائیوں میں رہتا ہے. قرش جو شپس کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. قرش ایسی مخلوق جس سے فائٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، جائنٹ بیسٹ. اب اس سے بنا اسم تصغیر قریش. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا گیا کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا بما سمیت قریش بدابت فی البحر تاکلها ولا تؤکل. قریش کو قریش اس سمندر کے جانور کی نسبت سے کہا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ سب کو کھا جاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھا سکتا. وَتَعْلُو وَلَا تُعْلَى. It overpowers but it is not overpowered. یعنی کیا مطلب ہے اس ایکسپلینیشن سے، اسم تصغیر سے؟ قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ قبیلہ عرب کے اندر بہت سٹرونگ پوزیشن رکھتا تھا. کوئی اس سے لڑائی نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کو مات نہیں دے سکتا تھا، اس کی طاقت اور اس کے ٹائٹل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا. اس کی عظمت تھی جو اس کو باقی عرب ٹرائبز کے اوپر ملی ہوئی تھی. عربن پیننسیولا میں عرب کی طاقت میں جو مقام قریش کو حاصل تھا، جو پوزیشن قریش کو حاصل تھی، جو اتھارٹی قریش کی تھی، اٹ واز لائک دا بیسٹ آف دا اوشن جو کہ قرش ہوتا ہے. تو اس کی اسمال مینیفیسٹیشن بٹ ود تعظیم اسم تصغیر قریش بنا کیونکہ یہ عرب پر رول کرتے تھے. ان کا اسٹیشن تھا بیت اللہ کی وجہ سے. تو قریش قریش کہلائے اپنی تعظیم اور تصغیر کی وجہ سے. اسی مفہوم میں اگر آپ تاریخ پڑھیں مسلمانوں کی تو ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسیسٹرز میں ایک نام آتا ہے فہر بن مالک کا. فہارا، فا کے بعد بٹر فلائی ہا آتی ہے، فہر بن مالک. وہ کہتے ہیں کہ فہر بن مالک بھی قریش کے لقب سے جانے جاتے تھے اس لیے کہ ان کے دور میں ہوا یہ تھا کہ یمن کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا اور اس نے اس نیت سے مکہ پر حملہ کیا، کعبہ پر حملہ کیا کہ وہ یہاں سے کعبہ کے پتھر لے جائے گا اور یمن میں جا کر بیت اللہ بنائے گا. اس وقت جب یہ یمن کے بادشاہ نے کعبہ پر حملہ کیا تو فہر بن مالک جو کہ اس وقت مکہ میں موجود تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ اس یمن کے بادشاہ کا مقابلہ کیا. نہ صرف مقابلہ کیا، اس کو ڈیفیٹ کیا، نہ صرف ڈیفیٹ کیا بلکہ اس بادشاہ کو گرفتار کر لیا. اور کہا جاتا ہے کہ پھر اس بڑی شکست جو انہوں نے دی تھی اس کے بعد ان کا ٹائٹل قریش کہلایا بیکاز ان کے لیے کہا گیا کہ ہی از جسٹ لائک دا جائنٹ بیسٹ آف دا اوشن.
कि इन्होंने इतनी ताकतवर फौज को डिफीट कर दिया है. सो दिस इज द सेकंड कॉनोटेशन ऑफ कुरैश कि ये इसम तस्गीर है, कर्श से बना है, और कर्श जंगली बीस्ट को कहते हैं जिसको कोई हरा नहीं सकता. थर्ड एंड द फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड कुरैश जो स्कॉलर्स बताते हैं, वो कहते हैं इस्मो कुरैशिन लिल कसबिन. वो कहते हैं कर्श काफराशीन बामानल कसब है. बामानी किस चीज के? टू अर्न. वो कहते हैं कुरैश इसलिए कुरैश है कि इसके अंदर कमाने का, अर्न करने का मफहूम है, तिजारत का मफहूम है. यानी कुरैश को कुरैश इसलिए कहा जाता था अकॉर्डिंग टू थर्ड एक्सप्लेनेशन कि ये ट्रेडिंग बिजनेस में बहुत आगे थे. आपको पूरी डिटेल अब पीछे पिक्चर में आ गई कि हम पढ़ चुके हैं कि ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा आगे क्यों थे, ट्रेडिंग में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों थे, ट्रेडिंग में इनको पोजीशन क्यों मिली हुई थी, टैक्स फ्री इनके जो थे वो कारवान यहाँ से वहां चलते थे. तो एक राय, जो तीसरी राय है, वो है कर्श बीमान अल कसब. वो कहते हैं कि इनको कुरैश इसलिए कहा जाता है कि ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी पर थे. ये जो मैंने आपके सामने तीन मफहूम रखे हैं, तीन एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड कुरैश. एक, जमा करना, क्योंकि जमा किया था इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के टाइटल की वजह से. दो, इनके इसम तस्गीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ताजीम और ताकत के पॉइंट ऑफ व्यू से कुरैश कहा जाता था क्योंकि इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, जस्ट लाइक द जाइंट बीस्ट ऑफ द ओशन. तीन, इनको इसलिए कुरैश कहा जाता था फ्रॉम कर्श कि ये अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में बाकी अरब के मुकाबले में बहुत आगे थे. ये तीनों डेफिनेशंस आपको अराइसुल कुरान व नफाइसुल फुरकान एक किताब है अरबी की जिसमें आपको ये डेफिनेशंस जो है ये मिल सकते हैं. तो सूरत कुरैश जब नाजिल हुई है तो इस आयत एक ने, जाहिर है ये आपको वो मुझे डेफिनेशन समझ आ रही हैं अब इल्म हासिल करने के बाद. कुरैश के लिए सारी कॉनोटेशंस खुली किताब की तरह थी बिकॉज अरबी उनकी जुबान थी. उनको पता था कि उनके नाम की कॉनोटेशन क्या है. वो हमारी तरह गाफिल नहीं थे कि अपने नाम की मीनिंग्स ही नहीं आते. तो जब सूरत कुरैश नाजिल हुई तो इस आयत में उनके कबीले की एसोसिएशन उनके नाम के साथ लेते हुए उनको बहुत कुछ याद करा दिया. जब कहा ली इलाफी कुरैश, सारी नेमतें उनको याद करा दें कि आखिर ये जमा होने की ताकत जो तुम्हारे अंदर आई, आखिर जो तुम्हें ये इज्जत मिली, आखिर जो तुम्हें ट्रेडिंग प्रॉस्पेरिटी मिली, आखिर जो तुम्हारे अंदर तिजारत करने की कैपेसिटी आई, कहां से आई? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम था. ली इलाफी कुरैश. जब सूरत कुरैश नाजिल हुई है, हम ये इनाम भी जानते हैं कि अब्रहा का हमला हो चुका था और अल्लाह कुरैश की और अपने घर की हिफाजत फरमा चुके थे ऑलरेडी. तो उस नेमत को भी यहाँ पर अंडरस्टूड समझा कुरैश ने, समझना चाहिए था. ये आयत बता रही है कि अल्लाह ने उनकी ट्रेडिंग रिज्यूम की, उनकी पोजीशन रिस्टोर की, उनको दोबारा से मजबूत किया. तो इस आयत के अंदर कुरैश को याद कराया गया कि तुम्हारी नेमतों का मकसद था तुम रब पर फोकस करते, तुम रब की तरफ ध्यान देते. और फिर इस आयत की फाइनल एक्सप्लेनेशन जो मैं आपके सामने बस रखना चाह रही थी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयत नंबर 1 मुकम्मल हो जाएगी. वो स्कॉलर्स, क्लासिकल स्कॉलर्स ये देते हैं कि इस आयत में आप इनडायरेक्ट एड्रेस अल्लाह की तरफ से कुरैश को देख रहे हैं. ये नहीं आया आयत में ली इलाफिकुम या कुरैश, तुम्हारे लिए अल्लाह ने ए कुरैश रग़बत दिलाने के लिए, मानूस करने के लिए तुमको इतनी नेमतें दी. डायरेक्ट एड्रेस नहीं है. अल्लाह डिड नॉट स्पीक टू देम, अल्लाह स्पीक अबाउट देम. कुरैश के बारे में अल्लाह ने बात की है, कुरैश से डायरेक्ट बात नहीं की. तो अब एक उसूल मैं आपको कुरान का दे रही हूँ, कीप दिस इन माइंड. आप इतनी छोटी सी सूरत से अगर ये उसूल जितने हम यहाँ पढ़ रहे हैं अपने साथ साथ रखेंगी, यू कैन अप्लाई एनीवेयर इन द कुरानिक स्टडीज इंशाल्लाह. जो स्कॉलर्स उसूल बताते हैं वो देते हैं कि जैसे यहाँ कुरैश को इनडायरेक्ट एड्रेस किया गया है, जाहिर है कुरान जब रसूलुल्लाह पर नाजिल होता था तो, और ये मक्की सूरत है, जब अल्लाह के रसूल आकर सुनाया करते थे सब सुनते थे, सबके कानों तक अल्लाह की वही पहुंचा करती थी. तो स्कॉलर्स के मुताबिक कुरान का उसूल जो सामने आता है कि कुरान जब नाफरमानी करने वालों को, सी
नाफरमानी करने वालों की बात हो रही है। कुरान जब नाफरमानी करने वालों को थर्ड पर्सन में एड्रेस करता है, इनडायरेक्ट एड्रेस करता है, तो वहां खासतौर पर वो जिन्होंने नाशुक्री की, नाफरमानी की, तो वहां पर एक उसूल होता है, उसको अरबी में कहते हैं तबईद। आप उर्दू में कहती हैं ना दूर, आप बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं तो आप कहती हैं बईद, आप कहती हैं ना डिस्टेंस करना किसी को इग्नोर करने की वजह से किसी को डिस्टेंस करना इस तबईद। तो स्कॉलर्स ली इलाफी कुरैश से यहाँ के लिए भी एक प्रिंसिपल देते हैं और पूरे कुरान के लिए एक प्रिंसिपल देते हैं। क्या है प्रिंसिपल? जब अल्लाह की नाफरमानी या अल्लाह की नाशुक्री करने वालों को अल्लाह ताला थर्ड पर्सन में एड्रेस करते हैं, तो उसमें तबईद का मफहूम होता है। तबईद का मतलब जब अल्लाह नाशुक्री करने वालों से थर्ड पर्सन में बात करता है, तो इसका मतलब है अल्लाह नाराज है, अल्लाह इग्नोर कर रहा है, अल्लाह ने इस काबिल नहीं समझा कि डायरेक्ट एड्रेस करे। और मकसद क्या है इस तबईद का? ताकि अल्लाह का नाराजगी का एहसास नाशुक्री करने वालों को एहसास दिला दे कि अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह इग्नोर कर देगा तो ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। अल्लाह नाराज हो जाएगा तो ना दुनिया संवरेगी ना आखिरत संवरेगी। ये पैगाम हर एक को दे दिया गया, सिर्फ कुरैश को नहीं दिया गया। हाँ, कुरैश के लिए तबईद का मफहूम बिल्कुल रखा गया, नाफरमानी करने वाले किसी भी दौर में हो सब सुन लें। अल्लाह अगर थर्ड पर्सन में डायरेक्ट कर रहा है नाशुक्री करने वालों को, थर्ड पर्सन में एड्रेस कर रहा है, तो अल्लाह हमें एहसास जगाना चाह रहा है, मेरे बंदो पलटो मेरी तरफ, वरना अगर मैं नाराज हो गया तो कोई काम नहीं संवरेगा। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में सब चीजें बिगड़ रही हैं, नेमतों से ज्यादा परेशानियां हैं, तो अपनी जिंदगी को सेल्फ इवैल्यूएट करें। कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, कहीं मैं अल्लाह से दूर तो नहीं जा रही, कहीं मैं अल्लाह को नाराज तो नहीं करने वाले काम कर रही, कहीं मेरे लाइफस्टाइल में कांस्टेंट नाफरमानी तो नहीं शामिल हो गई। ये है तबईद का मफहूम, जिसके अंदर रहमत होती है कि पलटने वाला अगर जिंदा है तो अब भी पलट आए। बेहतर है कि हम नेमत देने वाले की कदर करें, मुनइम को पहचाने, उसका शुक्रिया बोलें, हर छोटी छोटी नेमत को अप्रिशिएट करें। वरना याद रखें, जो हमारी नाफरमानियों के बावजूद हमें नेमत पर नेमत दिए जाता है मोहलत के तौर पर, शायद कि हम पलट आए, वो मुनइम नेमतों को रोक लेने पर भी कादिर है। और डरना चाहिए उस वक्त से कि अल्लाह हमसे अपनी नेमतें छीन ले, अल्लाह हमसे अपनी नेमतें रोक ले। ये कुरैश को भी रिमाइंडर था, इनडायरेक्ट तबईद के अंदाज में ली इलाफी कुरैश जब कहा गया, और हर उस इंसान के लिए इस तबईद में रिमाइंडर है जो अल्लाह की नाशुक्री में जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह ने जिस्म दिया, उस जिस्म को उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं इस्तेमाल कर सकते इस दुनिया में। अल्लाह ने आंख दी, कान दिया, जुबान दी, नेमत पर नेमत दी, रिश्ते दिए, सिबलिंग्स दिए, स्पाउस दिए, फैमिलीज दी, घर दिए। उन नेमतों को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल नहीं कर सकते? डर नहीं लगता कि वो मुनइम जहां नेमतें बरसा रहा है मेरी नाफरमानी के बावजूद, वो नेमतों को रोकने पर भी कादिर है। अल्लाह हमें तबईद के उसूल से अपनी इस्लाह का मौका अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने मुसलमान होने के ऊपर फख्र अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस फख्र को शुक्र में बदल दे। अल्लाह हम अपने फैमिली के साथ मोहब्बतें और खुलूस बांटने वाले होते हुए जिंदगियां गुजारें। अल्लाह हम ना सिर्फ अपनी औलादों को खूबसूरत मुसलमानों वाले बामानी मीनिंगफुल नाम दे सकें, बल्कि हम उनको ऐसी तरबियत करके इस दुनिया में छोड़कर जाएं कि उनके अच्छे मीनिंग्स के नामों का इम्पैक्ट उनकी पर्सनैलिटी, उनके किरदार, उनके उठने बैठने, उनकी चॉइसेस अडॉप्ट करने और उनके हर कदम के ऊपर जिंदगी गुजारने में रिफ्लेक्ट करे। अल्लाह हमें क़यामत के दिन बेहतरीन नामों के साथ
اٹھائے، اللہ روز محشر اپنی رضوان عطا فرمائے، اللہ اس قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے عمل میں ہر وہ علم عمل کے طور پر ریفلیکٹ اور مینیفیسٹ کر دیں جو ہمیں آپ کا پسندیدہ بنا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔